So student, as already I told, what I told that properties makes our integrand easier. Is it clear? Property makes our integrand easier. So few common 5 or 6 identities, properties are there. So one by one we will discuss and we will try to solve the question also. So suppose you have your first identity, suppose property 1, that is P0 भी लिखा हो सकता है, but in science it is written as P0 because it has no much more use. That's why it is written as P0. Property in science and standard book की बात कर रहा हूँ. P0, P1, P2, the property 1 to be like this. Okay. But in your maybe P1, P2 उससे कोई मतलब नहीं. आपको what is the byte contents आपको देखना है. P1 है, P2 है, उससे कोई मतलब नहीं. Okay. Sequence has doesn't matter. केवल आपको अरे great यार. See. So first property is that is, and why not that in case of definite integration? So in definite integration, I know one and important thing should be what the limit should be. What should be? Function x dx. Okay. If x equal to t, I am assuming x equal to t. So it will be dx equal to dt. And previous lecture, one thing I told that as well as you are changing the integrand or coefficient of integration, x से t में change हो गया, limits will be also change. So if x equal to t, so what is first limit a, है ना? So t equal to what? A. A and b are the value of x actually. जब when we go through that one graph मैंने किया था ऐसे, so this was the a था and this was क्या था b था. So if the a and b are deciding limit, so actually एक बार तो कोऑर्डिनेट x है, a और b है क्या? Value of x, है ना? We are deciding what limits on the basis of these two numbers, and these two numbers are on x-axis. So that's why these limits are simply in our own words we can say these are the value of x. ठीक है ना? जो limit है उसकी value initially x थी. Now the coefficient of integration is changed. dx से dt हो गया. So limit will be also turned in t. कोई करना. So x, this is actually what x है ना? x इसलिए a आ गया तो t को लिखा. x equal to a, so t equal to what? A. X equal to b, t equal to what? Now, so new integrand will be now. Limit change हुई क्या? a b यहाँ बोलो. And then dx and x equal to what? T. So it is ft or not? And this is what? dt. So both are equal. First जो आपका है that is क्या? This is the first property. अगर x को आप simply t में बदल दिया, limits are unchanged. Limits are दोनों के आपके equal. Otherwise जब previous question में देखा ना मैंने थोड़ा हल्का hint दिया आपका argument को hint, so उसमें देखा x से बदला तो t की value बदल गई पूरी. Most of the questions why you are changing the value of x, the t will be sorry the if you are changing the value of x into t, so value limits will be changed. But in few special cases if that type of situation arises, मेरा मतलब है अगर आपको x को t करने के बाद में लिमिट कोई नहीं बदलती तो सही नहीं आएगा. So that's why this can be minimized, this can be reduced as कैसे reduce कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम, that is ये एडिट रही ना, ये चला ना. So now it can be write as that is a to b function x dx is equal to a to b ft dt. ft dt कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. Actually where it is needed, you know, mainly क्या आप so many are there उसको मैं खासकर बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा. So where this will be used, जो ये प्रॉपर्टी है this will be used only where अगर आपने क्या किया क्या क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया using any property and all. So लास्ट में जो तो आपका फंक्शन है that जो आपका ये this is known as I है ना. So I की वैल्यू आपकी जो है t में चेंज हो गई, क्या होगी? But you have to write the answer in x because the integrand in x. आप आंसर t में नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो, एज्यूम कर लो, प्रॉपर्टी लगा दो, but finally you have to write your answer in term of given integrand. x में तो x में आएगा, t में तो t में. So it is given x में अगर है और करते करते लास्ट में काम हो गया हो इस फॉर्म में आ गया. So इसको आप इजीली विदाउट
डूइंग एनीथिंग आप सीधे सीधे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप इसको इस चीज को वापस x लिख सकते हैं। अब इफ इट इज द सिमेट्री यानी डिक्टो हो उसका क्या हो डिक्टो तो है ना, लिमिट्स आर सेम केवल x और dx x dy दिस इज ओनली चेंजिंग सो दिस कैन बी अप्लाइड एट दैट सिचुएशन। सिंपल है। और अगेन हम चाहिए इसका यूज बहुत कम है इसका जैसे हम अगर अज्यूम करते हैं x y ये भी कर सकते हैं ना। हाँ। जरूरी नहीं कि t लिखें। हां बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली x एंड y द कैलकुलस दैट इज डिपेंड ऑन अब जब हम एज्यूम कर रहे हैं तो जो बुक की टर्मिनोलॉजी है ना योर कैलकुलस इज डिफाइंड x प्लस दैट इज डिफाइंड फॉर x एंड y है ना। तो जब हम कुछ अलग करते हैं y को लिखते कहीं पे y आ गया मैं कौन को बोलते हैं t ही लेना आप z ले लो क्या ले लो बट x और y को क्यों नहीं ले रहे हो क्यों कह रहा हूं क्यों नहीं ले रहे ले सकते हो आप क्यों नहीं ले रहे because that your contents is defined in terms of x and y तो कहीं पे y टिपक दिया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा है ना। दैट्स व्हाई जो हमने एज्यूम कर रखा है दैट शुड बी बिल्कुल यूनिक होना चाहिए क्या होना चाहिए इस पे ठीक हो जाए बात सुना गई। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम कौन कह रहे हैं दैट इज p1 कह रहे हैं ना। सो इफ वी आर हैविंग तो suppose I equal to suppose it is a to b function x dx clear। so what is इसका क्या होता है रिजल्ट क्या होता है f using fundamental theorem of calculus implication ये बताया था and finally it is written as what f b minus f a that was the matter of the discussion of previous lecture ऐसा था ना ये तो बताया था ना कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन बताई थी। सो दिस सो अब मैं क्या करूं साहब अब मैं क्या करूं if I की लिमिट को बदल देता हूं क्या कर देता हूं लिमिट if I चेंज की लिमिट इसको कर दिया लोअर को अपर कर दिया अपर को लोअर कर दिया अब क्या होगा फंक्शन मैंने वही रहने दिया dx इक्वल बताओ क्या हो जाएगा f and it is v2 हो जाएगा ना it is v2a so it is what fb no fa ना fa minus fb माइनस से मल्टीप्लाई ये गजब कर माइनस कॉमन ले लो माइनस तो मैं इसे कंपेयर करना चाह रहा हूं ना जब इसमें माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये माइनस तो fb माइनस fa होगा या नहीं होगा तो यानी दो क्या हो गई तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकल के आई सेकंड प्रॉपर्टी कैन बी राइट एज प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आपको 1 सॉरी 0 और 1 जो भी कहें आप सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैन बी राइट एज ये याद रखिए डेरिवेशन नॉट गो फॉर दैट जस्ट आपको याद रखना कि ऐसा होता है बस है ना ऐसा होता है। सो क्या हुआ यहां पर इफ i इक्वल टू दैट इज ये लो i इक्वल टू क्या था बोलो I equal to limit p n upon limit p over limit a f हां i इक्वल टू था इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन इट इज a था एंड इट वाज b था फंक्शन x dx था एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस माइनस बोलो क्या v2a क्या v2a फंक्शन x ये क्या मतलब हुआ इसको आपने लिमिट चेंज की तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना इसका रिजल्ट आएगा ना लिमिट चेंज की जो रिजल्ट इसका सब रिजल्ट 5 आया कितना आया 5 तो जो इसका रिजल्ट निकालो तो -5 आएगा माइनस साइन चेंज हो गया अब माइनस बस समझ रहे क्या कह रहा हूं प्रॉपर्टी समझ आई जब इस्तेमाल करेंगे तब समझेंगे ये भी जब ये भी प्रॉपर्टी है बहुत कम रेयर अब जो वाली लगने वाली है अब जो लगेगी उसके क्वेश्चन बहुत आगे जो अब लगने वाले उसके क्वेश्चन वो क्या है स्पेशली इसके लिए मैंने कोई खास बात नहीं बताई जो मैं बताने वाला हूं दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर मॉडुलस फंक्शन के लिए मॉडुलस ठीक अब क्या होगा सपोज वी आर हैविंग oh I got to write what I got to write function a to b it is function x dx sorry function x and that is it is modulus function function x and it is modulus and it is dx सही कैसा फंक्शन मॉडुलस क्या एग्जांपल ले लो लिमिट्स एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा it is let it is I equal to I written -1 to 2 and it is x minus 1 या चलो ठीक है नहीं करते हैं स्टार्टिंग में एंड इट dx तो एक बात तो समझ में आ गई कि दैट इज मॉडुलस फंक्शन मैंने मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूं मॉडुलस फंक्शन मैंने कहा ना दिस जो आइडेंटिटी बताने वाला हूं सॉरी जो प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू डिस्कस
or modulus function. So what do we do? So what are these? In the previous discussion I told what are these actually? What is this? These are the value of x value. These are value of x. Clear? So from the given this जो आपको दिया है, so either it is x cube minus 1 दिया है, or suppose you have given x or x minus 1 दिया है. So from here what we will calculate few more value of x. We will calculate modulus function में क्या है? The function you have given, इससे हम कुछ modulus जो value of x है वो calculate करेंगे. So if I am कैसे करेंगे? Equal to 0 करेंगे. कैसे करेंगे? Equal to 0. So from here what are we get? x equal to 1. ठीक. Here from what you get? इससे बताइए तो इजीली आ जाएगा x equal to 0 और 1 इससे बताओ 1 नो x minus 1 और क्या होगा x स्क्वायर बोलो x प्लस ऐसा कुछ ना एक वैल्यू से आ जाएगी तो इससे दो वैल्यू आएंगी यानी तो जाएंगे तो इसमें वैल्यू को फैक्टराइजेशन लीनियर फैक्टर करेंगे तब तभी वैल्यू आएगी है ना सो बात सारा क्या कह रहा हूं व्हाट द फंक्शन गिवन an order function. From there, we have to calculate few more value, possible value of x. So in this question जो मैंने example दिया था, in this question what are the value आप getting? कौन कौन सी value मुझे मिल रही है? यही तो आइए, है ना? And up now move towards property value. पहले property बात करता हूँ. Suppose a and b are already given. If there is any other value of x in between क्या अगर x की वैल्यू 3 आ जाए question is this so 3 will be negative you have to assume only you have to consider only that value which is in between these limits इसके बीच में जो आ रही है क्या इसके बीच में से आ रही है yes है ना so now let हम कर रहे हैं मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं let a is given c इसके बीच में आया b is given और d भी अगर कोई d भी आ एक बार दो so a c d और b लास्ट ये तो लास्ट में आएगा I told that just value you have to consider only those values like between a and lower limit upper limit के बीच में जो आ रही है वो आपको कंसीडर करना है अदरवाइज करना आपने बात ठीक है इग्नोर कर क्या करना है so here so जो ये लिमिट आई थी क्या अब यहां पर क्या होगा व्हाट इज हैपनिंग यहां कहानी ऐसी बन के आ रही है कि इससे एक लिमिट बनेगी और इससे यानी दो इंटीग्रेट हो जाएंगे दिस इंटीग्रेट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सब इंटीग्रेट ठीक है ना c कहां से आया ठीक है नॉट ओनली c दो भी हो सकते हैं नॉट ओनली c दो भी हो सकते हैं एंड तो तब भी आएगा क्या आएगा अगर दो हो गए तब क्या लिखेंगे साहब a is less than c is less than d is less than b so this is first integrand this is second and this is third है ना so I am working for this so इसको बात करता हूँ so इसके लिए मैं अगर बात करूँगा so what will I क्या लिखूँगा बोलो our integrand will be हमारा जो integrand है वो क्या हो जाएगा बोलो I equal to आपका हो जाएगा that is a to c को into mod आप उसके लिए अच्छा उसके लिए भी बात करूँगा ठीक है फंक्शन x ठीक है ना dx प्लस बोलो प्लस क्या था हाँ क्या करना प्लस क्या c2 b फंक्शन x dx सही है सिंपल हो गया सो नाउ वी शुड मूव अब हमें किसके लिए मूव करना अब मैं एग्जांपल जो लिया उसकी बात करते हैं है ना अभी तो दो पहले क्वेश्चन के ऊपर कोई खास ऐसे स्पेशल केसेस के लिए एग्जांपल की ज्यादा जरूरत नहीं है so here this type of question will face many question will face in the that is SSI so इसको मैं स्पेशली बता रहा हूं so one example अगर रिटर्न दे तो इसमें जो है बात करते हैं so that is क्वेश्चन आप मुझे बताओगे अगेन क्योंकि आपको याद आपकी मेमोरी ज्यादा शार्प रहती है होशियार रहती हो so it is खाली मस्का नहीं लगा मैं and it is here समान living like other because this is period number 7 so है ना from the morning beginning you are learning कितना learning करोगे है ना and that's why many times I told that the student you leave the student then they hang the bag and go to coaching and all अरे क्या पढ़ोगे needs relaxation पहले सबसे पहले go for घर जाओ थोड़ा रिफ्रेश हो उसके बाद टेक द लंच उसके बाद रेस्ट करो तब जाके फिर नई सोच के साथ नई मम्मी के साथ फिर जाना सीखने के लिए लर्निंग के लिए सताने के लिए ओके नाउ सी so I equal to in this question I told that it is -1 and 2
and it is mod x minus 1 and it is x. So what is the possible value of x I told here? अच्छा ये फाइंड किया होगा because of the height factor में ध्यान नहीं दिया आ रहा है the and ये वो तो कर रहा है why that is ऐसा क्यों why that problem is technical supporter हैं जूम तो किया ही नहीं मैंने अब take so now see what I don't see so what is the possible value of x here that is so it will give x equal to 1 it will be equal to 1 so how many ingredients 2 so here it is minus 1 is less than 1 is less than 2 or not एक बात सुना रही होगी तो अब क्या करना है क्या इंटीग्रेंट बनेंगे एक तो इसका बनेगा और दूसरा इसका बनेगा सो दिस कैन बी राइट हाउ I equal to लिख देते हैं so I equal to what minus 1 to 1 x minus 1 dx plus 1 to 2 1 to 2x minus 1 क्या तो सुना गया इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान आपको ये रखनी है कि दैट इज सपोज दिस इज नंबर है ना सो क्या था -1 था क्या था 1 एंड इट इज 2 इसे तो मतलब नहीं ओनली पॉसिबल इक्वल 0 इंफिनिटी है ना आपको केवल वो लेने हैं यहां है दो तो एयर की x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में एक आपने निकाली है दो निकाली दो आ जाएंगे है ना और इफ दैट इज बियॉन्ड दिस लिमिट से बाहर तो उसको लगेंगे मैंने पहले बता दिया ठीक x की वैल्यू कभी ऐसी भी हो सकती है कि दैट मे बी बियॉन्ड द गिवन लिमिट्स -1 और 2 से बाहर भी हो सकती है तो उसको आपने नहीं लेना क्लियर सो अब क्या करना है एंड यू नो वेरी वेल द मॉडुलस फंक्शन है टू वैल्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो अब हमें देखना है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू को ले हमें देखना है सो उसके लिए हमें क्या करना है इसके बीच में क्वेश्चन नंबर लो कोई सा 0 0 0 को स्क्वायर को प्लस आएगा माइनस आएगा सो यहां लिखेंगे एट इंटरवल क्या है हमारा -1 to 1 हो रहा है तो 1 वाला लेना है बीच का हमने लेना है सो इट विल लेस देन 0 और नॉट यस मतलब हो गया -1 to 1 तो आपका ये आपका मॉडल फंक्शन क्या है x -1 इज लेस देन मैं मॉडल में लगा रहा हूं ये पता है कि इसकी दो वैल्यू होती है सो वी विल टेक ओनली दैट क्या है 0 1 लेस देन 1 का मतलब माइनस आना ना ये अनुसार देखो तो मैंने 0 रखा 0 कहां से आया आप कोई भी रखा अपन वाला रख दो ठीक है माइनस और 1 बिटवीन द एनी नंबर एनी वैल्यू x इन बिटवीन -1 and 1 -1 and 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख दो सो दैट विल गिव द नेगेटिव रिजल्ट ठीक सो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट लिखूंगा क्या आएगा माइनस आएगा नाउ सेकंड क्या है 1 to 2 1 to 2 x minus 1 is इसकी वैल्यू रखो 1.5 रख देते हैं है ना ऐसा रखना है कैलकुलेशन इजी हो जाए और हमारे हाथ में ना सो इट इज ग्रेटर हम 1.5 रखा सो प्लस आया दैट इज ग्रेटर देन 0 ठीक अब यह जब की बात हो गई उसके बाद हमने क्या करना है अब हमारा काम बहुत इजी हो गया कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है प्रॉब्लम क्या होने वाली है देखो आप सो i इक्वल टू आपका बना i इक्वल टू आपका हो गया फर्स्ट का था इंटीग्रेट क्या था -1 to 1 अब हमने यहाँ पे क्या लगा देना है मॉड हट गया इंसर्ट माइनस प्लस सेकंड वाला बोलो 1 to 2 प्लस लगना है क्या लगना है प्लस लगना है और dx अब तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया नाउ दिस इज क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर अब इसको इजी करने के लिए हम -x कर सकते हैं क्या कर सकते हैं माइनस के झंझट से बचने के लिए हम -x कर सकते क्या कर दोगे सो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं यहां पर -1 to 1 it is 1 minus x dx and plus that is 1 to 2 और ये क्या हो जाएगा आपका x plus 1 and that is dx अब इंटीग्रेशन कर दो अब क्या कर दोगे इंटीग्रेशन दोनों आता है ना पहले चैप्टर का तो इक्वल बताओ हां इसका हो गया x square by 2 plus no लिमिट -1
1 to 1 प्लस अब x स्क्वायर बाय 2 प्लस x लिमिट हो गई आपकी कितनी 1 to 2 है ना। एक से मैं बढ़ा देते हैं तो लिमिट अपर लिमिट पहले 1 माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट देखो माइनस 1 कोई आएगा क्या है तो माइनस का टाइम है हाँ। कोई है माइनस माइनस 1 सही हो रहा है यस माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट है अपर लिमिट ऑलरेडी 2 बीच में माइनस अब लोअर लिमिट माइनस शाबाश माइनस 1 माइनस माइनस 1 बाय 2 ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्लस सेकंड पार्ट 2 4 अपॉन 2 1 2 प्लस 2 4 स्टेप बचा लिया अच्छी बात है माइनस फिर 1 पे हो गई 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 इतना ही होगा ना ये होगा ये सेकंड ब्रैकेट एंड दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट सही है ये तो हो गया सीधी कर दो 1 में आधा गया आधा हाँ चलो अगली बात मान लेते हैं आपने जो बोला वो कृष्ण भगवान ने क्या बोला माइनस 1 माइनस सही है ना हाँ सर प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 4 माइनस हाफ माइनस ऐसे लिखा है तो प्लस हाफ से माइनस हाफ क्या सही करें आप प्लस 1 से माइनस 1 चला गया साहब 5 माइनस हाफ है ना तो कितना हो गया 9 बाय 2 जो फाइनल जो सॉल्व करके आएगा दैट विल क्या आएगा 9 बाय 2 दैट विल बी योर आंसर। अब इसको जरा छपा मार बड़ा आंसर तो क्वेश्चन ये सही है और अब सही ओके नोट कर लीजिए फटाफट एक क्वेश्चन हम फिर बुक से करेंगे आपके या पहले प्रॉपर्टी बता दें प्रॉपर्टी 4 पढ़ रहे हैं You have lots of experience here. बड़े में बता दिमाग में हिमांशु बुक है ना तो यार मॉडल मतलब मॉडल वाला कोई क्वेश्चन करते हैं ना मॉडल वाला छोटे क्या ये दो आ रहा है ऐसे भी मैंने कोई 3 फर्स्ट आपने बड़ा यहाँ पे Your homework is that is sin integration minus 3 plus 3 and it is x plus 2 and it is dx. So solve the you will get the same property. So what are the possible value actually you will get here? Minus 3 already there and you will get one more value minus 2. What you will get? Minus 2 and it is what? 3. So yeah and you will get the answer. Period number कौन सा है? है